Hi everybody, hope you all are doing great and I'm back again here with an amazing book today in my hand. So, I'll before introducing you with the book, let us have a brief introduction on a terminology called as power. या हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं अपने नॉर्मल डेली लाइफ में ना ये जो पर्सन है ये बहुत पावरफुल है. इस शब्द में ही कितनी ताकत है व्हेन यू से दैट समथिंग इज पावरफुल. पूरी लड़ाई और पूरी जंग इस पूरे विश्व में जब किसी चीज़ की चल रही है तो वो है पावर. Whenever you have this feeling of not having power over something, whether it's an event, a situation, a place, maybe a friend or maybe your partner, if you don't have a power over the person, that feeling becomes very unbearable. आप वो हैंडल नहीं कर सकते कि मुझे यहाँ पे कंट्रोल चाहिए. So that is the very intense stuff when I talk about something called as power. And इस power के लिए आज मेरे पास एक ऐसी किताब है जो literally I felt of not reviewing first, but then I felt that no, there are certain stuff in the book which is important for certain people out there to know that how important it is to understand certain laws when it comes to dealing with powerful person, getting that power inside, as well as to understand that how a person sitting at a powerful position is playing with you. Yes. So we'll have a review today on 48 Laws of Power by Robert Greene. Stay connected. Chaliye, so let's start the review of the book Power that is given by Robert Greene. But before I start, let me tell you this very clearly कि अगर आप एक बहुत क्यूट से पर्सन है, बहुत ऑनेस्ट से पर्सन है और आपको कोई लीडर वीडर नहीं बनना है लाइफ में, आपके मन ने आपने ठान लिया मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अपने कंफर्ट जोन में, प्लीज़ डोंट कंटिन्यू विद द वीडियो. बट if you are somebody who feels that no, I am at a situation where I need to deal with powerful people and need to understand what it takes to be that much powerful, then you should be here and listening to this. By the way, I have read multiple books when it comes to leadership, and this was something which I was not having the intention to read as well. I bought this for gifting purpose to a very powerful friend of mine, but I'm so glad that I read this book. मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मुझे भी एक बार तो पढ़ना चाहिए. But when I read this book, ट्रस्ट मी आई वॉज एस्टॉनिश टू सी सर्टन लॉज जो कि हम जैसे लोग जो अच्छे होते हैं जो लॉयल होते हैं ऑब्वियसली आई कंसिडर माई सेल्फ. सो वट हैपन्स इज यू डोंट हैव द हैबिट ऑफ प्लेइंग, then how can you become a leader? Because when it comes to a powerful position, even if you talk about Mahabharata, even Krishna had played. He had to, because the opponents were that level of smart people out there. So it's very obvious that in life sometimes you have to play. It's not about playing with relations, it's about playing at a political place. And this is what this book is going to teach you. I'll start with certain chapters. The first chapter itself says never outshine your master. Oh my god, and that made me so much regretful. समटाइम्स इट्स वेरी ऑब्वियस. ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बॉस सुपरस्टार हो या भगवान हो, नहीं, कई बार आप उनसे बेटर हो सकते हैं. बट इफ़ यू ट्राई टू पोर्ट्रे योर सेल्फ लिटिल बिट and if you try to outshine your master, it's very obvious this is gonna lead you to a huge trouble. That is very obvious. तो आप जितने भी स्मार्ट हैं कभी भी अपने आप को अपने बॉस से ज़्यादा स्मार्ट ना दिखाएं. बेवकूफ़ बन जाएं उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा है. कंसील योर इंटेंशंस. आपके अंदर जो भी है क्यों बताना है आपको क्यों इंटेंट करना है. आई एम प्लानिंग दिस और आई एम प्लानिंग दैट. डू नॉट. हाउ मच डज दैट मैटर्स? व्हाई कांट यू कंसील योर इंटेंशंस? That is gonna keep you an interesting personality. That is something you need to understand. Quote attention at all cost. आप भले ही अपने आप को inferior दिखाओ, but you need to be out of the crowd. जब आप कहीं enter करें, you should have all the eyes on you. जब आप कुछ बोले, you should have all the ears to you. You should have a personality that can never, you need to have something which people can't take it. No. Don't have this inferiority complex of not dressing good in your life. Please understand this. अगर आप अच्छा दिखते नहीं है, ये गए वो ज़माने वो लोग बेवकूफ़ हैं जो आपको ये बोलते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करते. लुक्स बहुत मैटर करते हैं. आपको अच्छा दिखना पड़ेगा to gain that confidence. So always remember that people are having eyes on you. You need to take attention by any cost, whatever you can take. Get others to do the work for you, but always take the credit. जो काम आपको आता है वो काम आपको क्यों करना है? मत करिए. आपको आता है, राइट? अगर आप कहीं पर भी एक लीडिंग पोजीशन पे हैं, लेट द अदर पर्सन डू द वर्क फॉर यू. व्हाई आर यू इन्वॉल्व इनटू दैट वर्क? उन्हें करने दीजिए, क्रेडिट अपने नाम पे ले लीजिए. और ऐसा ही होता है हर कॉर्पोरेट प्लेसेस में, आजकल तो हर एजुकेशन सेक्टर में भी. द इंफीरियर वंस आर डूइंग ऑल द वर्क एंड द
boss is taking the credit. That's the key that you have to understand. If I know stuff to do, why will I do it? You don't have to do what you actually know. Win through your actions, never through your argument. कई बार लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन है तो आप लड़के भिड़ के किसी जंग को जीत लेंगे. यार ये मत करो, इससे कुछ होना नहीं है. आपका मेंटल पीस जाएगा और एट द एंड कोई आउटपुट निकलता नहीं है. सो ऑलवेज हैव दिस हैबिट ऑफ जितना आप आर्ग्यूमेंट कम कर सके उतना ही आपके लिए भला है. लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में और आपको कुछ ऐसा आता है जो किसी को नहीं आता, डोंट बी फूल इनफ टू टीच समबडी. मत सिखाओ. और एक स्मार्ट पर्सन और एक पावरफुल पर्सन नहीं सिखाता है. क्यों सिखाना है आपको? अगर आप नहीं सिखाएंगे तो ज़रा सोचिए कि वो प्लेस आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा और आप फ्री हैं, आप आज़ाद हैं. दैट इज़ गोना कीप यू आउट ऑफ रिस्क. यू विल बी एट फ्री. सो नेवर टीच एनीथिंग एनीबडी. अपने पास रखिए, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है. यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम. कई बार क्या होता है, जब आप बहुत डिसऑनेस्ट लोगों के बीच में हैं, आपकी ऑनेस्टी किसी का दिल जीत सकती है. यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिवली ऑनेस्ट. आपको अपनी ऑनेस्टी को सोच समझ के बोलिए सामने वाले के सामने. एंड ये एक ऐसी क्वालिटी है जिससे आपका जो ओपोनेंट है, आपका जो एनिमी है, वो अपने हथियार रख देगा आपके सामने. You have to use that level of honesty. Pose as friend, work as spy. I'm not telling to work as an enemy. But if you want to understand the stuff about somebody, be the friend of the person. उसके सामने कुछ ऐसी बातचीत रखिए. Be that level of good in conversation level that you are able to understand the strength and the weaknesses of that person. Work as a spy. आप ऑफिस में रिश्ते बनाए तो पहली बार जाते नहीं है, तो वहाँ जाइए और वहाँ समझिए कि सामने वाले की कमज़ोरी क्या, आप मैं इससे किस तरह से काम निकालूँ, तभी आप पावरफुल बन पाएंगे. यूज़ योर एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर. अगर आप किसी जगह बार बार जा रहे हैं, अगर आप बार बार मीटिंग्स ले रहे हैं, अगर आप बार बार बोलते ही जा रहे हैं, आप बहुत कॉमन मैन बन जाएंगे. यूल ऑलवेज हैव दिस थिंग, यू विल लूज योर वैल्यू. दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टफ. और ये हर एक लीडरशिप की किताब में लिखा है. जो भी लीडरशिप की बुक्स किसी ने भी कभी पढ़ी होगी तो इसमें सिंपल सा फंडा होता है, स्पीक लेस. ज़्यादा विजिबल अगर आप हो जाएंगे तो आपकी वैल्यू गिर जाएगी. मल्टीपल मीटिंग्स करते रहेंगे आप, आपकी मीटिंग्स की वैल्यू गिर जाएगी. आप हर जगह खुद को इन्वॉल्व करने लगेंगे तो आपके किसी भी एडवाइस की वैल्यू गिर जाएगी. सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट यू नीड टू यूज़ योर एब्सेंस. कीप अदर्स इन सस्पेंस, कल्टिवेट द एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी. वेल, ये एक ऐसा पावर है विच नो बडी शुड एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप कब अपना टेबल टर्न कर दें. यू शुड हैव द टैक्टिक्स ऑफ टर्निंग द टेबल. यू शुड लर्न दिस. अगर आप वेरी प्रडिक्टेबल बन जाएंगे तो सामने वाले को पता होता है कि मुझे पता है इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा. बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट दिस लॉ नंबर 17, इट सेज दैट यू हैव टू बी अनप्रिडिक्टेबल इन योर लाइफ. डू नॉट बिल्ड फॉर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. आइसोलेशन इज डेंजरस. कई बार हम क्या करते हैं कि अपने आप को एक ग्रुप से अलग कर लेते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं. हमें लगता है यार मैं यही ठीक हूँ. अगर आप अकेले हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपके एनिमीज़ के लिए आपको अटैक करना. लेकिन अगर आप एक ग्रुप में हैं तो आपके एनिमीज़ आपको ईजिली अटैक नहीं कर सकते. तो जितना आप अकेले रहेंगे, जितना आपको लगेगा मैं अपना खुद का महल खड़ा करके बैठ जाऊंगी, लोग आपको उतना ज़्यादा अटैक करेंगे. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. डो नॉट कमिट टू एनीबडी. वही बेवकूफ़ होगा जो मैं ये बोलूँगी जो दूसरों की साइड लेते हैं. क्योंकि आप जिसकी साइड ले रहे हैं ना वो आपके लिए कभी खड़ा नहीं होने वाला. आपने तो कमिट किया, आपने अपनी दोस्ती निभाई, आपने अपने रिलेशंस निभाए, जिसको आप ऑफिशियल रिलेशनशिप बोलो या जो भी रिलेशनशिप बोलो, पर एट द एंड क्या होगा आपके साथ? यू विल बी द वन इन ट्रबल. सो डोंट डू दिस स्टुपिडिटी ऑफ एवर कमिटिंग टू एनीबडी. यूज़ द सरेंडर टैक्टिक. अगर आपके साथ किसी का आर्ग्यूमेंट हो चुका है, आप फंस चुके हैं, तो आपको क्या करना है? आपको करना है सरेंडर. यू डोंट हैव टू फाइट विद द पर्सन. अपनी इज्जत के लिए कभी प्लीज़ लड़िए मत. दैट्स अ स्टुपिडिटी. आप उन्हें ये सेटिस्फैक्शन मत दीजिए कि उन्होंने आपको हरा दिया. अगर आप उनसे लड़ रहे हैं और वो बंदा आपसे पावरफुल है तो जाहिर सी बात है कि आप हारोगे. पर जब आपने उससे बैटल किया, आपने उसे सेटिस्फैक्शन दिया, ओह फाइनली आई हैव डिफीटेड दिस पर्सन. डोंट गिव दिस सेटिस्फैक्शन. सो इट्स स्टुपिडिटी व्हेन यू आर ट्राइंग टू हैव एन आर्ग्यूमेंट विद द पर्सन. इट्स बेटर टू सरेंडर. शांत हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए, कुछ समय दीजिए और सामने वाले को सोचने का मौका दीजिए कि भाई आपने जो भी किया हम हारे नहीं, हम उसी पोजिशन पर आज भी बैठे हुए. सो एंटर एक्शन विद बोल्डनेस. जो भी कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ करिए. गलत है तो भी कॉन्फिडेंस के साथ करिए. मेक ऑल द वे वॉट एवर यू आर प्लानिंग, प्लान इट टू द एंड. अज्यूम फॉर्मलेसनेस. फॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप किसी भी ऑफिस में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं,
उससे आपकी ना रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। अगर आपको लग रहा है बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग होते हैं यार, आई हैव सीन मल्टीपल पीपल हु हैव दिस हैबिट ऑफ वर्किंग ऑन देमसेल्फ। देयर आर पीपल हु वर्क ऑन देयर कम्युनिकेशन, देयर आर पीपल हु वर्क ऑन देयर लुक्स, देयर आर पीपल हु वर्क ऑन देयर फिजिक, देयर आर पीपल हु वर्क ऑन देयर विजडम। आपको पता है आपका फ्रेंड भी आपसे जलेगा। You are creating enemies, please know this. And when you are creating enemies, you have to be very powerful to defeat them and to understand कि who is my enemy. जो चीज़ आप में नहीं है आप वो किसी और में देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। Although the person is working very hard, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। If somebody is having a good communication skill, if somebody is having good looks, आपने ये बैठ के नहीं सोचा है, वो ये बैठ के नहीं सोचेगा कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी ये दिन लाने के लिए, इतना अच्छा बोलने के लिए, इतना अच्छा दिखने के लिए। Nobody will understand this. But what they'll do is they'll sit back, they'll look at you, they'll throw negative energies on you. That's it. So have the habit. अगर आपको परफेक्ट अपीयर करना ही है तो परफेक्ट लोगों के बीच करें। अगर आप गधों के बीच बैठे हैं वहाँ पर आप शेर बनेंगे, इट विल बी योर लॉस। एंड मैं सिर्फ ये बुक्स के थ्रू नहीं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। दिस डज मैटर्स इन लाइफ. So, if you are somebody who wanna become a leader, you are aspiring to be a leader, or you are a leader already, yaar, please go and have this. This is gonna at least give you 10% of idea that how important it is and how important it is to be political in life. बहुत ज़रूरी है, वरना you will be suffering like, आप महाभारत ले लीजिए, हम सबके लिए बहुत बड़ा लेसन है वो। पांडव की तरह सफ़र करेंगे आप। देर हैज़ टू बी अ कृष्णा, देर हैज़ टू बी समवन टू प्ले। उन्हें भी जगाया गया था, यू हैव टू प्ले। सो इफ़ यू आर अमंग द प्लेयर्स, माई डियर, इवन इफ यू हैव द स्वीटेस्ट हार्ट इन द वर्ल्ड, know this that you have to play. If you want to lead, you should know how to play. Yeah, so that's all from my side here by 48 Laws of Power by Robert Greene. I maybe